بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے کے اندر پڑھاتے بھی ہیں، وائس پرنسپل بھی ہیں، وہاں کے مدرس بھی ہیں اور وہاں نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ اور انہوں نے 2 سال پہلے یہاں عشرہ پڑھا تھا۔ اور یہ ہمارے مولانا عاشق علی صاحب ہے خاص کیلی، اور یہ جو ہے 3 سال سے یہاں پر مقیم ہے۔ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کا گھر ہے، 2 کمروں پر اور وراندے پر مشتمل ایک بہترین گھر ان کو بنا کے دیا گیا ہے تاکہ یہ یہاں پر رہائش پذیر ہو۔ یہاں پر 2 پلیٹیں اس کی لگا کے دی گئی ہیں، کیا کہتے ہیں، سولر سسٹم کی۔ یہاں رات کو ان کے پاس لائٹ بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، گرمی سردی میں ان کے پاس سہولتیں اس کی موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے فقیر صابر علی صاحب ہیں جنہوں نے یہ زمین دی ہے، وقف کی ہے امام زمان جاگیر امام زمانہ کے لیے۔ یہ فقیر یوسف ہے، ان کے بھائی ہیں، اور وہ فقیر اقبال حسین ہیں جو ابھی زیارات سے واپس آئے ہیں، جنہوں نے آج میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ یہاں پر یہ 54-55 فیملیاں، اور اس کے علاوہ دیگر اطراف کے مومنین کو اور دیگر مسلمانوں کو بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب سے بات کریں، مائک ویڈیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اہلہ۔ ماشاءاللہ 1 سال قبل میں یہاں پہ قبلہ شبیر رضا زیدی صاحب کے تعاون سے یہاں پہ عشرہ پڑھنے آیا تھا۔ تو جو عشرے میں نے جو یہاں پہ دیکھا کہ ابتدائی ماحول تھا، تو 10 دنوں میں یہاں پہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ ابتدائی مسائل ان کو سنائے، اور ان کے علاوہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتے تھے، امام زمانہ ان کو یاد کی۔ اور ان کے علاوہ اطراف میں جو یہاں پہ گاؤں ہے، وہاں پہ بچوں کو ہم لے کے گئے مختلف پروگرامات میں تاکہ وہاں پہ بھی وہ شرکت کرے تو ان کو پتہ چلے کہ مقصد حسین کیا ہے، آزاداری کیا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ سائیں شبیر رضا زیدی صاحب کے تعاون سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سائیں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور مولانا عاشق علی صاحب جو یہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، کریم اللہ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے توفیقات الہی میں اضافہ فرمائے، اور یہاں کے جو مومنین ہیں ان کی بھی توفیقات الہی میں اضافہ فرمائے، اور یہاں پہ زیادہ توجہ دینے کی توفیق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم سائیں قبلہ سید شبیر رضا حسین زیدی صاحب اساں وٹ تشریف فرمائن، جنن یہ خدمات محمد وال محمد انجام ॾियण जो शरफ़ हासिल कयो आहे। असांखे दीनी मदरसो ऐं घर बि तइमीर करे ॾिनो आहे। उन खां अलावा जेके बि हिन ॻोठ में मोमिन मुस्लमान थिया आहिनि, पहिरीं गैर मुस्लिम हुआ, असांखे साईं ड्यूटी जे लाइ हिते छॾियो हो। एतिरे क़दुरु वीचारा माना तक़रीबन जेके बि ॿार असां वटि पढ़णु ईंदा हुआ त उन्हनि खे ॻाल्हाइण बि न ईंदो हो। तक़रीबन छोकिरियूं ऐं छोकिरा काफ़ी असांखे टाइम लॻो उन्हनि खे असां ॻाल्हाइण ते उन ज़बान खे उन तवजह खे आमादा कयो। ऐं माशाल्लाह हाणे माशाल्लाह जिन्हनि ॿारनि में तरबियत हासिल कई आहे उन्हनि मां रिस्पॉन्स सुठी मिली रही आहे असांखे। ऐं उमेदु आहे त साईं वारनि जो तावन असां सां गॾु रहंदो बाक़ाइदे ते इंशाअल्लाह तमामु बहितर ही कमु हली रहंदो। इंशाअल्लाह तमामु मोमिन मोमिनात जे शिरकत करणु माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तकरीबन 4 साल पहले हमने यहाँ पर इन लोगों को कलमा पढ़ाया था। ये तकरीबन 52-54 फैमिलियाँ हैं, छोटे बड़े मिलाकर। इनके यहाँ सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि बच्चा बालिग हो जाए, लड़की बालिग हो जाए तो ये उसे फ़ौरन शादी करा देते हैं ताकि किसी किस्म का गुनाह जो है वो इनसे सरजद न हो। ये इनके यहाँ पहले से ही, मुसलमान होने से पहले ही ये रस्म कायम थी। बहरहाल मौला ने इन्हें तौफीक दी और इन्होंने कलमा पढ़ा और अभी आज हमारे साथ में हैं। इनके मतलब ये कि तमाम लवाज़मात को हमने कोशिश की है पूरा करने की, और मोमिनीन से भी गुजारिश है कि अगर वो हमारे साथ ताउन करें तो यहाँ पर इनके
फ़कीरों के जो है ना वो एक कच्चे पक्के मकानात भी बनाने हैं, ताकि ये ज़मीन पड़ी हुई है और ये ज़मीन इन्होंने वक्फ करके हमें दी है। हमने यहाँ पर मिट्टी डलवाई ताकि ये ज़मीन ऊंची हो जाए, ताकि यहाँ पर जो है वो आना जाना आसान हो। इनको हमने यहाँ बोरिंग भी करा के दी है, जो पानी की मोटर भी उसमें लगा के दी है। सोलर सिस्टम का निज़ाम है, लेकिन अभी उसे और अच्छी तरीके से, मतलब ये प्लेटें जो है ना उखड़ जाती हैं। अब उसके लिए ज़रूरत है कि लोहे के इंगलारन हों, उनको वेल्ड करा के और उसे ऐसा मजबूत कर दिया जाए कि फिर वो उखड़ न सकें या हवाओं से वो इधर उधर ना हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, मोमिनीन इस तरफ तवज्जो दें। तो ये बच्चे खड़े हैं छोटे, और ये अभी तो आज मजमा कम है, लेकिन अगर छुट्टी के दिनों में, आम दिनों में हम आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजमा होता है। ये तकरीबन इमाम बारगाह भी हमें छोटी पड़ती है। लिहाजा मौलाना आशिक हुसैन साहब की खिदमत हैं। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मुश्किल हालात में कि जो लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं उनका ज़बान ही नहीं पलटती अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, या दुआ इमाम ज़माना, या 12 इमामों के नाम, या सूरह हम्द, सूरह इखलास। बहरहाल अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, इनकी ज़बानें भी पलट रही हैं, और ये अच्छी तरीके से जो है वो नमाज की भी अदायगी भी करते हैं। बल्कि एक बच्चा यहाँ पर ऐसा है, वो इस वक्त पता नहीं है कि नहीं है, तो मौलाना की गैर मौजूदगी में यहाँ पर नमाज भी पढ़ाता है, और वो मतलब खासा ट्रेंड किया है मौलाना ने उसको। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। ये इमाम बारगाह है, और इसके साथ ही ये जो है मौलाना का घर है। अब हमें इस तरफ जो है ये जो है, ये आप ज़रा थोड़ा सा इस तरफ देखें कि ये हमें कवर करना है, ताकि हम ख़वातीन को बिठाने के लिए भी एक इमाम बारगाह के साथ इमारत बना सकें, और इसी के साथ 3-4 कमरे बन जाए जहाँ पर हम स्कूल बनाएं, और ये इसकी बाउंड्री वाल बन जाए, ताकि हम बाउंड्री वाल के ज़रिए से जो है वो कुत्ते और दीगर हराम जानवरों से भी महफूज रहें, और ये इसकी जो चोरी चकारी है उससे भी हमें जो है वो महफूज हो जाए। तो ये जो इमाम बारगाह की खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये दरवाज़े बने हुए हैं, इसके लिए हमें जाली के दरवाज़े चाहिए, लोहे के दरवाज़े चाहिए, ताकि इमाम बारगाह की खिड़कियाँ अगर खोल दी जाएँ तो उस तरफ से कोई आदमी कूद के अंदर ना आए, या लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ के अंदर ना आ सके। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि इस सिलसिले में ताउन फरमाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा, मुआवनत। हमारे पास आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनाई, आयतुल्लाह उज़्मा शेख हाफिज़ बशीर साहब के इजाज़तनामे और वकालतें मौजूद हैं। अगर आप हज़रात चाहें तो खुम्स के रकम से भी दे सकते हैं, ज़कात भी दे सकते हैं, सदक़ात व खैरात भी दे सकते हैं, और अपने मरहूमीन के बुलंदी दराजात के लिए भी अगर एक एक कमरा बनवा के देंगे तो ये होगा कि इनकी तालीम का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा, और आप लोगों की जो काविशें हैं इंशाअल्लाह वो इमाम ज़माना की बारगाह में कबूल होंगी। और ये हमारे रईस नवाज़ अली ख़ान साहब की गाड़ी है, जो चांदियो बलोच कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इस गाड़ी को थोड़ा सा मुशाहिदा फरमाएं। अच्छा, इन्होंने पूरी गाड़ी को इमाम बारगाह बना रखा है। और ये जो ये जो है नवाज़ अली ख़ान, ये शुरू से हमारे साथ रहे हैं। और अली नवाज़ चांदियो साहब ये हमारे मुआविन हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा दूर गोलारजी से आगे इनका अपना गांव है, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन हम जब भी इनको बुलाते हैं, दिन में रात में, ये हमेशा आते हैं, और ये आज़ादारी के मामले में और दीगर मामलात में हमारे साथ ताउन फरमाते हैं। खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में भी और तमाम मुआविनीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।